سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی کے شہری بنیادی سہولیات کو بھی ترسنے لگے ہیں۔ اختر کالونی سیکٹر ای میں دن یا ہفتے نہیں 2 مہینے سے گیس بند ہے۔ شہری لکڑیوں پر کھانا بنانے پر مجبور، برتنوں کے ساتھ ساتھ کچن کی دیواریں بھی سیاہ ہو گئیں۔ گیس بندش کے باوجود بھاری بلوں کی وصولی بھی جاری۔ 2 ماہ قبل حادثہ پیش آیا تھا جس کے بعد گیس بند کر دی گئی۔ شکایتی مراکز کے چکر لگا کر تھک گئے، طفل تسلیوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ علاقہ مکینوں کا شکوہ، تفصیلات جانیں گے وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ کالونی سیکٹر ای کے مکین گیس کو ترس گئے۔ لکڑیوں سے اٹھتے دھوئیں سے جہاں کچن کی دیواریں سیاہ دکھائی دیتی ہیں تو وہیں خواتین کے لیے کھانا یا ناشتہ کی تیاری امتحان بن جاتی ہے۔ گیس کا 2 مہینے سے مسئلہ چل رہا ہے، سانس کی تکلیفیں ہو رہی ہے، لوگوں کو بہت شدید مشکل کا سامنا ہے ہمارے کو۔ گیس والے بولتے آج آئے گا کل آئے گا، نہیں آ رہا۔ بس یہ مسئلے ہمارے بہت زیادہ حل کیا جائے، مہربانی ہے۔ گیس آنا چاہیے، سب کی مشکلیں حل ہونی چاہیے۔ مکینوں کا بتانا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ قبل علاقے میں ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کے بعد سے سوئی صدر نے گیس کی فراہمی معطل کر رکھی ہے۔ تاہم ہزاروں روپے کے بل آ رہے ہیں جن کی ادائیگی اس ڈر کے ساتھ کرتے ہیں کہ کہیں سوئی صدر کا عملہ گیس میٹر سے محروم نہ کر دے، جبکہ بڑے ہوں یا بزرگ ہو سوئی گیس کے شکایت گئے ہیں۔ سوئی صدر کے شکایتی مراکز پر صرف تسلیاں دی جاتی ہیں۔ 13 مہینے میں لگاتار سول سینٹر پیدل جاتا ہے، پیدل آتا ہے، گیس کے پیچھے گاڑیاں بار کے لے گئے۔ یہ اسٹین کی جو لائن ہے میں نے ڈالی، پھر اس کے بعد 1.5 سال کے بعد لائن پھر آج بہت دھماکہ ہوا ہی سامنے 5 آدمی فوت ہو گئے گیس کا۔ اس کے بعد بہت بار کے 2 مہینے 3 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی گیس کا کوئی صرف پنجاب کالونی میں جاتا ہوں، پیدل ہی آتا ہوں۔ یہ اختر کالونی سیکٹر ہی گلی نمبر 9، کیونکہ جتنے بھی گلیاں ہیں 10 ہو گئی، 11 ہو گئی، باقی جتنی گلیاں ہیں اس میں گیس کسی میں نہیں آ رہی ہے، 7 میں آ رہی ہے، 8 میں آ رہی ہے، چند گلیوں میں گیس آ رہی ہے، ہماری گلی میں نہیں آ رہی گیس، پتہ نہیں کیا وجہ۔ اور یہ سامنے فلٹر ہے پانی کا، آفتاب کھٹا کر انہوں نے یہاں سے پریشر مارا، سارا پانی ادھر بھیج دیا۔ علاقہ مکینوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنا کر ان مشکلات کو ختم کیا جائے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ اور اب آپ کو بتائیں، بجلی کی بندش نے کراچی والوں کو چکرا دیا۔ مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے تک بجلی بے غائب۔ تاج کالونی، لیاری، سولجر بازار، پراچا چوک کے مکین خار، شیرشاہ، مسان چوک، اعظم بستی، میمن کوٹ کے علاقے متاثر ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ شکایت کے باوجود کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کو تیار ہی نہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بننے لگا جان کا عذاب، بجلی کا بحران، معمولات زندگی متاثر، شہری پریشان۔ ایک طرف آگ برساتا سورج، شدید گرمی اور حبس، دوسری طرف بجلی کی طویل بندش۔ کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ طویل لوڈ شیڈنگ سے تاج کالونی، لیاری، سولجر بازار، پراچا چوک کے مکین خوار ہو گئے۔ شیرشاہ، مسان چوک، اعظم بستی، میمن کوٹ کے علاقے بھی متاثر۔ لانڈی، شیر پاؤ کالونی، اورنگی اور کورنگی میں بھی بحران، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ شہری کہتے ہیں کہ دن میں متعدد بار بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی اذیت جھیلنی پڑتی ہے، کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ کل رات سے گئی ہے، جو 3 بجے کی گئی ہوئی لائٹ ابھی تک نہیں، ابھی تک بیٹھے۔ یہ لائٹ کا جو ہے روز کا جو نا مسئلہ ہوا ہے، 2 دن پہلے بھی لائٹ گئی ہے، تو جو ہے نا وہ بل وغیرہ جو ہوتا ہے یہ منتھلی مہینے کے لے کے جاتے ہیں، مہینے 1000 کوئی کسی کو 1000 لیتے ہیں، کو 1500 لیتے ہیں، کو 3000 بھی لیتے ہیں۔ رات سے 2 بجے سے گئی ہوئی ہے، ابھی تک پتہ نہیں ہے، پہلے 2 دن بیچ میں لائٹ غائب تھی۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ اور ناظرین، گیزر استعمال کریں نہ کریں اضافی بل دینا ہوگا۔ سوئی صدر نے بلوں میں گیزر ٹیکس شامل کر لیا ہے۔ سوئی صدر نے کراچی والوں سے وصولی شروع کر دی۔ جماعت اسلامی کا گیزر ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ، مونم ظفر نے معاملے پر احتجاج کی دھمکی بھی دے دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گیزر استعمال کریں یا نہ کریں اضافی بل دینا ہوگا۔ سوئی صدر کی گیس کے بلوں میں نئے چارجز کی وصولی، صارفین کے لیے کونیکل بیفل لگوانا لازمی قرار، عوامی شکایات پر اوگرا کا ایکشن، کونیکل بیفل کی قیمتوں پر جواب طلب۔ اوگرا نے سوئی گیس حکام کو خط لکھ دیا، کہا SSGC سے اس معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے، صارف خود سے بھی گیزر پر کونیکل بیفل لگوا سکتا ہے۔ اوگرا کی جانب سے منظور شدہ لاگت گیس بل میں 12 مساوی ماہانہ اقساط میں وصول کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کا چارج
चार्जेस वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने एहतजाज की धमकी दे दी। बोले इतनी महंगाई में शहरी भारी बिल कैसे अदा करेंगे। गीजर नहीं हो लेकिन बिल आप जो है वो लोगों से वसूल कर रहे हो। हम इसके खिलाफ अदालती रास्ता भी इख्तियार करेंगे, हम एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, जो जो जमहूरी रास्ता हो सकता है वो सारे रास्ते हम इख्तियार करेंगे। शहरियों ने चार्जेस की वसूली मुस्तरद कर दी। गैस तो नहीं करेंगे तो बस सिलेंडर लेके आएंगे। सिलेंडर महंगाई इतनी है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बेटा इजाफी बिल तो सर आम लग रहे हैं, कौन सा इजाफी बिल ले रहे हैं? ये हर 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद बजट आ रहा है। गीजर में कॉनिकल बैफल का इस्तेमाल तवानाई की बचत के लिए लाजमी करार दिया गया है। इससे गैस के बिल में 25% तक की बचत का दावा किया जा रहा है। गीजर का इस्तेमाल करें या नहीं, इजाफी बिलों का बोझ बर्दाश्त करना होगा। SSGC ने गैस की बिलों में कॉनिकल बैफल का इजाफी चार्ज लगाना शुरू कर दिया। जी हाँ, शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े हैं। कहते हैं कि गैस आती नहीं और बिल वो भी अदा करते हैं जो चीज़ इस्तेमाल भी नहीं की जाती। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा नमरा रियासत की रिपोर्ट में। जी, SGC की जानिब से जो इजाफी बिलों का बोझ बढ़ाया गया है, गीज़र के नाम पर जो कि गीज़र इस्तेमाल नहीं भी करते उनको भी इजाफी बिलों का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा रकम है। जिससे शहरी जो है वो क्या राय रखते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा, अभी ये सूरत हाल है कि आप गीज़र इस्तेमाल करें या ना करें, आपको इजाफी बिल देना है, क्या कहेंगे? हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। ये बिल पहले भी फिक्स चार्जेस लगा के आ रहे हैं और अभी मज़ीद टैक्सेस लगा रहे हैं और बहुत स्टैंडर्ड चार्जेस ये वो फिक्स बहुत सारे जो है ना टैक्सेस इसमें लगाते हुए आ रहे हैं। तो मेरा यही है कि नहीं होने चाहिए। गरीब आवाम पे जो है ना इतना बोझ डाला हुआ है, पहले के इलेक्ट्रिक की तरफ से अब गैस की तरफ से, तो इसको नहीं होना चाहिए। मुतल्लिका इदारों से और हुकूमत से कि इस पर नज़रसानी करें और आवाम को कोई रिलीफ देने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाएं। कराची की मुख्तलिफ अदालतों में अहम समातों पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। SBCA फंक्शन लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के कत्ल का केस। शर्की की अदालत ने मुल्जिम बाबर सिराज को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने मुल्जिम को मकतूल के वर्सा को 10 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटनी होगी। अदालत ने मुल्जिम को गैर कानूनी असले पर मजीद 10 साल कैद की सजा भी सुनाई। पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के अगवा और कत्ल का केस। उजैर बलोच समेत 3 मुल्जिमात के बयानात कलम बंद कर लिए गए। उजैर बलोच ने मौकिफ अपनाया कि उनका किसी कत्ल और मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे झूठे इल्जामात में फंसाया गया है। समात के दौरान मुल्जिमान शेर ऑफिसर और रियाज सरूर के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। अदालत ने आइंदा समात पर फरीकैन के वकील से हतमी दलाइल तलब कर लिए। ठेकों में अदम शफाफियत के खिलाफ ठेकेदार की दरख्वास्त पर KMC के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। दीगर फरीकैन ने भी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। मेयर व डिप्टी मेयर का बराह रास्त इंतखाबात करने के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने दरखास्तों की मजीद समात 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लापता अफराद केस में अदालत के हुक्म पर DIG ईस्ट व दीगर अफसरान अदालत में पेश। अदालत ने 3 माह में पुलिस रूल्स में इस्लाहात का हुक्म दे दिया। महकमा दाखिला अज खुद पुलिस सिफारिशात में तब्दीली न करे। 2 माह में सिंध पुलिस अपनी सिफारिशात तैयार करके महकमा दाखिला को फराहम करे। शाम में महसूर पाकिस्तानी फैमिली की वापसी से मुतालिक दरख्वास्त। वजारत खारजा, डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन और शाम में कायम पाकिस्तानी सिफारतखाने को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 11 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। इस्माइल टहरी की जानिब से सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार को जान से मारने की धमकियां देने के मामले पर सिंध बार कौंसिल ने हफ्ते को अदालती बाइकआउट का ऐलान कर दिया। और नाजरीन, दूसरी जानिब तलबा का एहतजाज रंग ले आया। जामिया कराची में तलबा अलायंस का रहनुमा और वाइस चांसलर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए। मुतालबात तस्लीम करने पर जामिया कराची तलबा अलायंस ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। लेट फीस 50% के बजाय 10% कर दी गई। री एडमिशन फीस 4 सेमेस्टर्स की फीस ना देने पर आयद होगी। इम्तिहानी फीस अब हर कोर्स के हिसाब से होगी। तफसीलात जुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में। और आज एक खुशगवार माहौल में हमारी उनसे मुलाकात हुई, जिस पर हमने उनके सामने अपने 14 नुकात पेश किए। उन 14 में से 11 नुकात VC साहब ने बखूबी उनको एक्सेप्ट किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने हमसे ये वादा किया कि बरोज़ पीर इंशाअल्लाह इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा और इंशाअल्लाह जो भी आपके मुतालबात हैं उसको माने जाएंगे।
तलबा अलायंस के मुताबिक उनकी जानिब से 14 मुतालबात शेख उल जामिया के सामने रखे गए। शेख उल जामिया ने 11 मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। लेट फीस 50% के बजाय 10% कर दी गई। री एडमिशन फीस सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद नहीं बल्कि 4 सेमेस्टर की फीस ना देने पर आयद होगी। इम्तिहानी फीस अब हर कोर्स के हिसाब से होगी। फीस न भरने पर तालिब इल्म को इम्तिहान में बैठने से नहीं रोका जाएगा। पॉइंट्स में इजाफे के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा को खत लिखा जाएगा। सिक्योरिटी कमेटी में तलबा की नुमाइंदगी शामिल होगी और बाहमी ताबुन से सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएंगे। इवनिंग प्रोग्राम में 10 नए पॉइंट्स शामिल किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सईद उबैर राशिद, सिटी 21। और अब आपको बताएं, सिंध में तरक्याती मंसूबों पर काम तेज। मंसूबों की तकमील के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए जारी। गवर्नर हाउस में कसीरुल मंजिला फ्लैट्स की तामीर के लिए 53 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। कोरंगी में 8 अदालतों की तामीर पर 5 अरब 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में तरक्याती मंसूबों पर काम तेज। कई मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। गवर्नर हाउस सिंध में कसीरुल मंजिला फ्लैट्स की तामीर पर 53 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मिल्क प्लान के करीब सिंध हाई कोर्ट के मुलाजमीन के लिए रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। कोरंगी में 8 अदालतों की तामीर पर 5 अरब 21 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। एनिमल एंड फिशरीज कॉम्प्लेक्स कोरंगी के क़याम पर 7 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च होंगे। GOR भारत आइलैंड में रिहायशी ब्लॉक की तामीर पर 95 करोड़ 4 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची में एंटी करप्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 50 करोड़ 64 लाख रुपए मुख्तस। भारत आइलैंड में 20 सेक्रेटरीज के लिए फ्लैट्स की तामीर पर 41 करोड़ 39 लाख रुपए मुख्तस। सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन के रिहायशी इलाके के तरक्याती काम पर 21 करोड़ 22 लाख रुपए मुख्तस। मनसूबाबंदी और तरक्यात के कॉन्फ्रेंस रूम और दीगर दफातर की तामीर पर 12 करोड़ 6 लाख रुपए मुख्तस। जून 2024 तक इन मंसूबों पर 5 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। रवामारी साल में 2 अरब 92 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इनमें से 1 अरब 16 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। जजेस के लिए अच्छी खबर है। सीनियर सिविल जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस को 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं। 30 जजेस को एडिशनल सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्कियां दी गई। मजीद ये रिपोर्ट देखें। जजेस को तरक्कियां मिल गईं। सीनियर सिविल जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस को 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गईं। 30 जजेस को एडिशनल सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गईं। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन महकमा कानून इंसाफ व पार्लिमानी उमूर ने जारी किया। तरक्कियां पाने वाले जजेस में वसीम अहमद, मिर्जा तौसीफ अहमद और अहमद रजा अबलो शामिल हैं। मोहम्मद असलम चांडियो, एहसन हैदर शाह, मोहम्मद ताहिर अब्बासी शामिल। निजामुद्दीन, मीर हसन कशमाला एडिशनल सेशन जजेस बन गए। गुलाम अब्बास मेमन, अर्जुन लाला को भी एडिशनल सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में सिबगत उल्लाह पाटवाली, इश्तियाक अहमद मेमन और फाइक अली पठान भी शामिल हैं। अब आपको बताएंगे, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। 40 फुट कंटेनर का रेट 25,000 रुपये बढ़ गया। मेंबर कराची गुड्स कैरियर राना तारिक का कहना है कि डीजल महंगा होने से किरायों में इजाफा हुआ। सब्जियों और दालों की कीमतें बढ़ने का खदशा है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। डीजल की कीमत बढ़ने के मनफी असरात। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ा दिया। मेंबर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना तारिक कहते हैं कि डीजल महंगा होने से किरायों में इजाफा हुआ। सब्जियों और दालों की कीमतें बढ़ने का खदशा है। डीजल बढ़ने से पहली फुर्सत में महंगाई आवाम पर पड़ती है। देखें, अब 2 दिन पहले डीजल बढ़ा है तो 20 से 25 हज़ार रुपया रेट ट्रॉलर का बढ़ चुका है और इसका महंगाई का असर 2 से 4 दिन बाद शुरू हो जाएगा। उसकी वजह कि पहले जो इजनास पड़े होते हैं तो उसकी वजह से वो स्टॉक पड़ा होता है तो वो चलता रहता है। अब जो स्टॉक जाएगा उससे ज़ाहिर है आवाम के ऊपर डायरेक्ट महंगाई पड़ेगी। राना तारिक बोले कि हुकूमत को आवाम पर तरस नहीं आता, डीजल की कीमतों में कमी करके रिलीफ दिया जाए। मतलब इनको को रेवेन्यू चाहिए तो इनको एक ट्रांसपोर्ट इदारा मिला है जिससे ये पैसे कमा के को अपनी यशियाँ करें। खुदारा इसको डीजल को और ये टूल प्लाजों को रोकें और इसका डायरेक्ट जो है महंगाई का असर अवाम पर पहुंचता है। ये अवाम के साथ ज्यादती है। डीजल की कीमत 5 रुपए लीटर इजाफे से 251 रुपए 29 पैसे हो गई है। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21।